আমরা পৌঁছে গেলাম সেই বিখ্যাত বেনারসের গলি, এবং এই জায়গাটা অনেকে কাশী বলেও জানে। প্রয়াগরাজ থেকে বেনারসে এসে আমরা হোটেল নিই, তারপরেই এক্সপ্লোর করতে বেরিয়ে যাই এই যে লোকাল যে বেনারস যে জায়গাটি আছে সেটা দেখতে। তো আমরা প্ল্যান করলাম যে বেনারসের গলিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো দেখি, আর কাশী বিশ্বনাথ যদি দর্শন হয় আমরা তার সঙ্গে দর্শনটাও সেরে নেব। আমরা যখন মন্দিরের সামনে গিয়ে পৌঁছালাম, সেইখানে অনেকগুলো ডালা কাউন্টার আছে, আর খুব সুন্দরভাবে গোছানো সাজানোভাবে ডালাপত্রগুলো রাখা যায় সেরকমও ব্যবস্থাও করা আছে। তো আমরা সব কিছু আমাদের ব্যাগ লাগেজ যা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেইগুলো ওইখানে ওই দোকানেই রেখে আমরা টোকেন নিয়ে আর যা ভগবানকে দেওয়ার সেইগুলো নিয়ে ফল ফুল নিয়ে আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তো লাইনটা আমাদের প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা লেগেছিল পুজো দিতে। তো আমরা পুজো দিয়ে এই ঠিক যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এইটা বেরোবার জায়গা, এইটা হচ্ছে কাশী বিশ্বনাথ করিডোর বলে। এই করিডোর যেটা বানানো হয়েছে এইটা এতক্ষণ লাইন দিয়ে আসার পরে যে মানুষ একটু রেস্ট নেবে বসার জন্য, রেস্টুরেন্ট আর বসার জন্য খুব সুন্দরভাবে করা হয়েছে। আর সামনেই একটা বড় টিভি স্ক্রিন লাগানো হয়েছে যেখানে দেখা যাবে এই যে শিবলিঙ্গটি কীভাবে পরিষ্কার করা হয় সব পুজো দেওয়া হয়ে যাওয়ার পরে, সেটা পুরোপুরি এই স্ক্রিনে দেখানো হয়। তো খুবই সুন্দর লাগছিল। আমরা বেশ কিছুক্ষণ এখানে ওয়েট করে আমরা এটা দেখলাম। তারপর আমরা চলে গেলাম ঘাটের দিকে। ঠিক মন্দিরের পাশেই এটা ঘাট, যেটাকে বলা হয় কাশী ঘাট। তো এই ঘাটের যে সামনে নদী আছে, সেই নদীর সামনেই এই লেজার লাইটে এই যে শোটা করানো হচ্ছে, এইটা রাত্রিবেলা করেই হয়, সন্ধ্যেবেলাতেই হয়। যে অ্যাকচুয়ালি এইখানে কীভাবে যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরতে কতবার হামলা করেছে, কে কতবার অ্যাটাক করেছে, তার পুরোটা হিস্ট্রি এইখানে এই অ্যানিমেশনের দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে। তো আমরা বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম, বেশ অনেকক্ষণ লেজার শো হলো। তারপরে আমরা দেখে রাত্রিবেলার ডিনার ও এখানকার যে স্পেশাল খাবার যে মিষ্টি, এই মিষ্টিগুলো খেয়ে, বেনারসের স্ট্রিট ফুড বলে, তো এইগুলো খেয়ে আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করলাম। মিষ্টিগুলো অসাধারণ ছিল, যেটা বেনারসেই শুধু ভালো লাগে। নেক্সট ডে আমরা মর্নিংয়ে চলে এলাম আশি ঘাট বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে সকালবেলা ভোর 5টা দিয়ে গঙ্গা আরতি হয়। তো এই গঙ্গা আরতি দেখার জন্য অসংখ্য লাইন পড়ে। তো সকাল সকাল আসতে হয় সিট নেওয়ার জন্য। তো আমরা সকালবেলা এসেই সিট নিয়েছিলাম। আর এই গঙ্গা আরতি স্টার্ট হবে তার প্রিপারেশান নিচ্ছে এইখানকারই যে পুরোহিতরা। অসাধারণ লাগছিল। তো আমরা পুরোটা দেখলাম, দেখে তারপরে আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করব। তারপর আমরা চলে এলাম বেনারসের সাইট সিন দেখতে। ये क्या है? सारनाथ का मेन मंदिर है। सारनाथ का मेन मंदिर है ये? बौद्ध मंदिर, मेन बौद्ध मंदिर है। ओके। इसको बोलते हैं मूल गंध कुटी विहार टेम्पल। कितना बड़ा नाम है। और इसको बनवाया था श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल ने, इसलिए इसको श्रीलंका टेम्पल भी बोलते हैं। ओके। हाँ, कुछ अलग स्ट्रक्चर का है। हाँ, ये मंदिर बना ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जब बरसात होती है तो मंदिर पूरा रेड दिखने लगता है। अच्छा। बलुआ पत्थर से बना है, पानी गिरता है तो रेड दिखता है। भगवान बुद्ध ने जिस मुद्रा में उपदेश दिया था इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है कि भगवान बुद्ध का जो स्टार्टिंग है बौद्ध धर्म का, यहीं से स्टार्टिंग हुआ था। उपदेश देने के बाद, टीच करने के बाद, तो उसी स्टैचू की सिंगल स्टोन की स्टैचू मंदिर के अंदर रखी गई है। तो सिंगल प्योर गोल्ड पेटेड किया गया है। मंदिर को बनाने वाले देखिए अनागारिक धर्मपाल, इन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। अनागारिका धर्मपाल इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और मंदिर के चारों तरफ वॉल पेंटिंग बनाई गई है। इस वॉल पेंटिंग को बनाने जापान के आर्टिस्ट थे ईश्वर तासो, उन्होंने इस मंदिर के अंदर वॉल पेंटिंग बनाई है। মন্দিরটির ভিতরে
ঠিক এইভাবে যে এত সুন্দর চিত্রকলা করা হয়েছে সেইগুলো খুব সুন্দরভাবে বৌদ্ধ ধর্ম কীভাবে বিস্তার করেছে তার পুরোটা হিস্ট্রিটা পুরো মন্দিরের চারিপাশে আঁকা হয়েছে, সেইগুলো আমরা দেখলাম। দেখে এরই মধ্যে আরও অনেক কটা এরকম স্তূপা আছে, অনেকগুলো দর্শনীয় স্থান আছে, তো আমরা দেখব। তো দেখতে দেখতে আমাদের প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় লাগবে। তো আমরা একটা একটা করে এর ভিতরে কী কী আছে সব কটা দেখব। देखिए इस टेम्पल को बोलते हैं मैत्री बुद्धा टेम्पल। मैत्री बुद्धा और इसके जापानी टेम्पल भी बोलते हैं। जापानी टेम्पल इसलिए बोलते हैं कि जापान की क्वीन ने इसको बनवाया था 1864 में, तो इसको जापानी टेम्पल बोलते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको पैगोडा बोलते हैं। पैगोडा मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की 2 स्टैचू रखी गई है, जो एक भगवान बुद्ध का जो यहाँ आके चले गए पास्ट का, और एक आने वाले बुद्ध का है, आज जो 5000 साल बाद उनका फिर से पुनर्जन्म होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया था, वो महापरिनिर्वाण किया था। इसलिए ऐसा माना गया है कि 5000 साल बाद फिर से भगवान बुद्ध का फिर से पुनर्जन्म होगा, उसी चेहरे में उसी रूप में होगा, और वैसे ही जैसे पास्ट में थे। ठीक है। और सामने आप जो देख रहे हैं ये स्टैचू, ये अनागरिक धर्मपाल, जिन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को फाउंड किया था, और इसी के अंडर में मैनेजमेंट पूरा किया जाता है मंदिर का। ओके, ठीक है। तो यही इधर से मंदिर के अंदर जाना है तो सूर्य निकाल कर देखिए तीसरा ब्रांच का बोधि ट्री है, ये देख रहे हैं ना, ये पीपल का पेड़, ये तीसरा ब्रांच जो ओरिजिनल वाला आपका बोध गया बिहार में है। अच्छा। जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा वाला आपका श्रीलंका के अनुराधापुरम टेम्पल में, जहाँ पे अशोक के बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र ने लगाया था। और तीसरा ब्रांच जब 1931 में इसको यहाँ लगाया गया अनागरिका धर्मपाल जी के द्वारा। तीसरा ब्रांच है। भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से उपदेश दिया था, उनके 5 शिष्यों का मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल को बनाने में बर्मा देश के लोग हैं। প্রত্যেক বুদ্ধা টেম্পলের বাইরেই এই জিনিসটা থাকে। সো মৌ এই জিনিসটা ঘোরাতে ঘোরাতে এগোতে থাকলো, আর আমরাও আরও যেগুলো দর্শনীয় স্থান আছে সেইগুলো দেখতে থাকলাম। এটি হচ্ছে সারনাথের সবথেকে বিখ্যাত জায়গা বুদ্ধা স্তূপা। এই যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, এইখানে বসেই ভগবান বুদ্ধ তার 5টা যে স্টুডেন্ট ছিল তাদেরকে বুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান দিয়েছিল, তাই জন্য এই জায়গাটাকে সবথেকে পবিত্র বলে মনে করে। চলে এলাম আমরা খুব বড় একটি বুদ্ধা মূর্তি দেখতে, যেটা ঠিক আমরা যে সারনাথ দেখছিলাম, সারনাথের যে সাইড সিনটা তার অপোজিটে আছে। এইখানে এসে আমরা একটা গাইড নিই, সে আমাদের থেকে মাত্র 50 টাকা নেয় এই জিনিসটা পুরোপুরি ভালোভাবে ঘুরিয়ে দেখার জন্য। और देखिए बताएं। बोलिए। और देखिए सबसे पहले मेरा नाम राज है, और हम सारे लोग यहाँ पर सोसाइटी वर्कर होते हैं, यहाँ पर बुनकर सोसाइटी से। और ये जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। सारनाथ। हाँ आप लोग। और वो वाला जो दिखे वो वाला वो स्तूपा। हाँ स्तूपा भी सारनाथ एक प्लेस का नाम है। अच्छा, ये प्लेस का नाम है नाम सारनाथ। अच्छा। और इसका जो 5 स्टार ओल्डर नेम वो सारंगनाथ था। ओके। सारंगनाथ नाम लॉर्ड शिवा के वाइफ ब्रदर भगवान शिव जी के साले का नाम था सारंगनाथ। ये सारनाथ नाम इसका इसलिए बोलते जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने 5 जन को पहला बौद्ध धर्म का उपदेश यहाँ पर दिया, और यहीं से ही बुद्धिज्म स्टार्टिंग हुआ है। सार का मतलब होता है उपदेश, स्पीच, और नाथमिस होता है भगवान। जब बुद्ध देव ने अपने 5 जन को पहला उपदेश दिया, तब इस प्लेस का नाम पड़ा सारनाथ। और ये जो कैंपस, इसको थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोलते हैं। इस पूरे कैंपस का सारा देख रेख मेंटेनेंस सब थाईलैंड गवर्नमेंट करता है, अपने इंडियन गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। और इस पूरे कैंपस के भीतर जितने भी वर्कर होते हैं उनका टोटल सैलरी भी थाईलैंड देता है आज भी। जैसे गार्डन को सारा टाका थाईलैंड से आता है। ओके। और जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में 4 धाम होता है ना, सेम बौद्ध धर्म में भी 4 धाम है। इनका पहला प्लेस है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर बुद्ध देव का जन्म हुआ। दूसरा जगह इनका बना हुआ है बिहार के अंदर बोध गया, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला।
और तीसरे प्लेस पे भी आप खड़े हैं, सारनाथ। यही वो जगह जहाँ पर बुद्ध ने अपने 5 जन को पहला उपदेश दिया और यहीं से बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इनका चौथा प्लेस है कुशीनगर, गोरखपुर यूपी में ही पड़ता है और बुद्ध का डेथ प्लेस है, जहाँ पर बुद्ध को डेथ हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। और ये जो सारनाथ जगह है बहुत बड़ा है, मगर सारनाथ केवल 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो बौद्ध धर्म और दूसरे गांव के अंदर जो लोकल बुनकर होते हैं। यहाँ पर सारनाथ में देखने के लिए केवल बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, एक खाने बुद्ध देव के अलावा किसी भगवान का टेम्पल मोनेस्ट्री फेमस नहीं है। और सारनाथ को लोग बुनकरों का गांव बोलते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ के 80% घरों में केवल लोग बुनाई का काम करते हैं। पहले चलेंगे हम लोग यहाँ से बोधि वृक्ष। यहाँ पर चारों स्टैचू थाईलैंड में भगवान बुद्ध का ही बनाया हुआ है, मगर बुद्ध देव का बैठने का मुद्रा अलग अलग बना है। ये सबसे बड़ी वाली मूर्ति, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। गया में भगवान बुद्ध को उसी मुद्रा में ज्ञान मिला था। और एक खाने साइड का दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट साइड वाले मुद्रा को सारनाथ का टीचिंग मुद्रा बोलते हैं, उपदेश मुद्रा। इसी मुद्रा में बैठकर बुद्ध देव ने अपने 5 जन को पहला उपदेश दिया था बौद्ध धर्म का। और जो बीच वाली मूर्ति, इसको बुद्ध का अभय मुद्रा बोलते हैं। अभय का अर्थ होता है जिसके बॉडी में कोई डर, कोई भय ना हो, बीच वाला अभय मुद्रा। और हम लोग अपने इंडिया में इस पेड़ को पीपल ट्री बोलते हैं, पीपल गाछ, मगर जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं इसी पेड़ को ये लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि ट्री। क्योंकि गया में बुद्ध देव को एक पीपल पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बुद्धिस्ट लोग पीपल गाछ को बोधि गाछ बोलते हैं, बोधि वृक्ष। मगर एक्चुअल बोधि ट्री नहीं है। जो एक्चुअल बोधि ट्री है बौद्ध गया के अंदर है, बिहार में, वो भी पीपल ट्री है। जैसे हम लोग खड़े होकर इसको पीपल बोल रहे हैं ना, कोई बुद्धिस्ट खड़ा इसको बोधि वृक्ष बोलता है। फोटो लेना तो दीजिए। कल का हर एक मंदिर बनता है, हाँ ऐसे ही मंदिर इस बनता है। मॉडल को पगोडा बोलते हैं, पेगोडा मॉडल। पेगोडा, हाँ, और टेम्पल के भीतर में एक बुद्ध देव की मूर्ति बनी है सिंगल स्टोन से, और जो मतलब एक पत्थर। और स्टैचू की हाइट है 9 फीट 5 इंच। मूर्ति में कोई जोड़ नहीं है और सैंड स्टोन है, उसके ऊपर केवल गोल्ड पॉलिश, गोल्ड पेंट है। और अंदर में जो बुद्ध देव बैठे हो अभय मुद्रा, एटा बीच वाली मूर्ति अभय मुद्रा। और इस टेम्पल को थाईलैंड देश ने यहाँ पर 1964 में बनाया था। ये 1964 का मंदिर और 3 भाग में डिवाइड है। पहले पार्ट में पहले आप लोग विजिट कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। हाँ यहाँ के सारे सारनाथ के लोग होते हैं ना, सारे लोग दलाई लामा को भगवान मानते हैं, क्योंकि सारनाथ जगह का पहला बिजनेस रोजगार दलाई लामा ने ही लोगों को दिया था। सुना होगा आपने, बनारस शहर का 2 चीज़ अभी पूरे विश्व में फेमस है, एक तो पान और दूसरी जो बनारसी साड़ी होता है, जो सिल्क है। मगर जो बनारस की साड़ी होता है उसका बुनाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग बनारस घाट साइड नहीं होता, और यहाँ के गांव से बनकर बनारस में एक्सपोर्ट होता है, इसलिए सारनाथ को लोग बुनकर गांव बोलते हैं, वीवर्स प्लेस। और इसी के अंदर दलाई लामा के यहाँ पर विपासना सेंटर भी चलता है। विपासना सुना हुआ है, जी लिखा है ना, जैसे ध्यान करते हैं लोग ना 2 मिनट 5 मिनट विपासना, हम लोग 1 हफ्ता 10 दिन एकदम मौन रहते हैं, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं बोलेंगे। दिन में एक बार खाना खाकर उसके अंदर शांति से बैठे रहेंगे, बस ध्यान करते हैं। मतलब मेडिटेशन ही होता है, बस मेडिटेशन 2 मिनट के लिए होता है, विपासना 1 हफ्ते के लिए होता है, ये फ़र्क है। मगर सारनाथ के लोग, यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, बौद्ध धर्म नहीं है, यहाँ के 1% भी बुद्धिस्ट लोग नहीं होते हैं, सारे लोग यहाँ पर हिंदू है, फिर भी सारे लोग यहाँ पर दलाई लामा को भगवान मानते हैं। रीजन क्या है, ये का पहला बिजनेस रोजगार दलाई लामा ने ही लोगों को दिया था। थाईलैंड ने यहाँ पर 80 फुट 9 इंच का बनाया हुआ, ये ओनली रेप्लिका है, बोलो तो कॉपी। इसका जो फर्स्ट कॉपी बना था अफगानिस्तान कंट्री में बामियान बुद्धा, मगर 2001 में वहाँ पर तालिबान ने पूरा मूर्ति उड़ा दिया था। तो अब थाईलैंड के बुद्धिस्ट लोगों ने मेमोरी के लिए इसको यहाँ पर 80 फुट 9 इंच का रेप्लिका बनाया। और मूर्ति को 80 फुट 9 इंच बनाने का उनका लॉजिक था, जो भगवान बुद्ध थे वो 80 वर्ष तक जीवित थे और 9 मंथ अपनी माँ की पेट में, इसलिए मूर्ति को जोड़ के 80 फुट 9 इंच बनाया गया। और इसका यहाँ पर लॉन्चिंग किया गया रिसेंटली 16 मार्च 2011 में, वो भी मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड द्वारा। और इस बुद्धा को बोलते हैं यहाँ पर लोटस बुद्धा, क्योंकि बुद्धा लोटस फ्लावर के ऊपर खड़े हैं। और ये पूरा मूर्ति को बनाने में यहाँ पर 8 साल लग गया था, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर को जोड़ के बनाए, ब्लॉक्स दिख रहा होगा, इसलिए इसको बनाने में उनको टाइम लग गया। ये थाईलैंड के राजा ने आकर यहाँ पर लॉन्च करके गए थे इसको। बनारस में जितने भी घाट देखा होगा आपने, विश्वनाथ मंदिर, थाईलैंड टेम्पल,
ये मूर्ति सब सैंड स्टोन का बना है। ये पत्थर यूपी में एक जगह मिर्जापुर चुनार कि वहीं से ही पत्थर आता है। इस पत्थर की खासियत है जितना पुराना होगा उतना मजबूत होता है और साइन देता है उतना। तो फेंक रहे कंटिन्यू बाना हो गया, यही होता है कबीरदास का कहना वाला। देखो जब पैर से दबा रहे हैं तो ऊपर वो कार्ड चेंज हो जा रहा है, बदल रहा है कार्ड। तो जब वो दबाने से ही यहाँ पर होल आउट डिजाइन अपने आप होता है। বেনারসি শাড়ি কিভাবে তৈরি হয় সেটাও দেখাতে নিয়ে এলেন আমাদের ওই গাইড ভাই। তো আমরা দেখলাম কিভাবে বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়। এই সারনাথ জায়গাটি বেনারসের খুবই পপুলার সাইট সিনের মধ্যে পড়ে, যা বেনারস থেকে 11 কিলোমিটার দূরে। যেখানেই যাই সেইখানকার লোকাল যে স্ট্রিট ফুড কতটা সুন্দর খেতে হয় সেটা এই ওইখানকার লিট্টি চোখা খেয়েই বুঝতে পারলাম। একদম দেশি স্টাইলে লিট্টি চোখা খেয়ে আমরা পরে সাইট সিন দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সারনাথ থেকে এইটি 9 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এইটার নাম সর্বেদ মন্দির, আর বেনারস থেকে পড়ে প্রায় 16 কিলোমিটার। প্রায় অনেকেই জানে না যে এইটা বেনারসের এতটা কাছে আর এত সুন্দর একটি মন্দির আছে। না গেলে বোঝা যেত না, আমরাও মিস করতাম যদি না আসতাম এইখানে। তো আমরা ওইখানকার হোটেল থেকেই আমাদের জানায় যে এই জায়গাটা আপনারা ঘুরে আসুন, আর এসে বুঝতে পারলাম এই মন্দিরটা এতটা সুন্দর আর এতটা বড়। এক পাক ঘুরে দেখতে প্রায় অনেকটা সময় লাগবে এই মন্দিরটা দেখতে। ভিতরে অপরূপ সুন্দর কাজ যা দেখে মন ভরে যাবে। চারিদিকে কাঠ আর পাথর খোদাই করে এই মন্দিরটা তৈরি করা হয়েছে। আমরা যা জানতে পারি এই জায়গাটা মেডিটেশনের জন্য স্পেশালি তৈরি করা হয়েছে, যা পুরোপুরি ওপেন এখনও পর্যন্ত হয়নি। জাস্ট ট্যুরিস্টদের জন্য খোলা হয়েছে ভিতরটা ঘুরে দেখার জন্য, বাট এখনও মন্দিরটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে ওঠেনি, আরও সময় লাগবে। বাট আমরা যদি এইটা না দেখে চলে যেতাম আমাদের মনে হতো যে সত্যি আমরা খুব একটা ভালো জিনিস না দেখে আমরা ব্যাক করলাম বেনারস থেকে। তো বেনারসে যারা আসবে তারা নিশ্চয়ই এটা দেখা উচিত। পরবর্তীকালে এটা পুরোপুরি যখন রেডি হয়ে যাবে আমরা আবার আসবো এটা দেখার জন্য, কারণ এটা পুরোপুরি কমপ্লিট হলে কতটা সুন্দর লাগবে সেটা বলে বোঝানো যাবে না। সন্ধেবেলা এটা নাকি আরও সুন্দর লাগে। আমরা সন্ধেবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিনি, তো আমরা দিনের বেলায় দেখেছি। তো দিনের বেলা দেখেই আমাদের এত সুন্দর লেগেছে, আর এত সুন্দরভাবে তৈরি করা হচ্ছে, সত্যি অসাধারণ। পরবর্তীকালে এই মন্দিরটি ভারতবর্ষে একটা আলাদা জায়গা নেবে এইটা আমি বলতে পারি, কারণ এত সুন্দর নিখুঁত কাজ আমি খুব কম মন্দিরেই দেখেছি এটা এই সময় এত সুন্দরভাবে তৈরি করা। তো পুরোপুরি আমরা জিনিসটা দেখলাম, দেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পরবর্তী আমাদের যে জায়গাটা আছে সেটা হচ্ছে নামোঘাট, সেটা বেনারসের সামনেই। আমরা এটিও বেনারসের খুব ফেমাস একটা ট্যুরিস্ট প্লেস, যেখানে ম্যাক্সিমাম লোক এসে ছবি তোলেন। নামোঘাট থেকে আমরা একটা লঞ্চ করি, যেটা পার হেড সামান্য কিছু টাকা নিয়েছিল। সেটা আমাদের ওইখানকার যে যত ঘাট আছে বেনারসের, এক একটা ঘাটের এক এক রকম নাম আছে, সেই ঘাটগুলো দেখাতে দেখাতে আমাদের পুরোটা দেখিয়েছিল। দেখিয়ে আবার আমাদের নামোঘাটে এসেই ড্রপ করেছিল। এইখানে প্রত্যেক ঘাটেরই এক একটা করে নাম আছে, আর প্রত্যেক ঘাটে একটা করে স্টোরি আছে। তো এই স্টোরিগুলো ওইখানকার লোকাল যে ট্যুরিস্ট গাইড আছে তারাই এগুলো আমাদের বলতে পারে। তো আমরা নৌকা করে যেতে যেতেই যা দেখার আমরা দেখলাম, খুবই সুন্দর লাগছিল। আর দেখতে দেখতেই আমাদের রাইট সাইডে যেরকম যাচ্ছি, রাইট সাইডেই পড়বে আমাদের মণিকর্ণিকা ঘাট। এই যে দেখা যাচ্ছে যে ঘাটটি, এটাই হচ্ছে মণিকর্ণিকা ঘাট, যেটা হিন্দু ধর্মের খুব পবিত্র শ্মশান বলে মনে করা হয়। আর পাশে যে গেটটি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কাশী বিশ্বনাথের করিডোর গেট। আগের দিন রাতে আমরা এইখান থেকেই দাঁড়িয়ে যে অ্যানিমেশন দেখানো হচ্ছিল ঠিক এই ওয়ালেই দেখা হচ্ছিল। তো আমরা পুরোটাই এই নদীতে নৌকায় বোটে চড়ে চড়ে এটা আমরা দেখে নিলাম। দেখে আমরা যে নামোঘাট আছে সেই নামোঘাটে গিয়ে আমরা কিছু ছবি তুলে নামোঘাট থেকে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। দুদিনের মধ্যে আমরা কাশী বিশ্বনাথ দর্শন ও আর যে সাইট সিনগুলো আছে সেগুলো পুরোপুরি দেখে নিলাম।
শেষে আমরা দেখে নেব নামো ঘাট। ওই যে সোজা দেখা যাচ্ছে ওটাই বলা হয় নামো ঘাট, যেটা খুবই ফেমাস একটা টুরিস্ট স্পট এখন হয়েছে। নামো ঘাটটিও বেনারসের খুব জনপ্রিয় একটি টুরিস্ট স্পট। তো আমরা এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম, ভালো ভালো ছবি তুললাম, তারপরে আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করলাম। দুদিনের মধ্যে আমরা যতটা পেরেছি বেনারসটা ঘুরে দেখার চেষ্টা করেছি। এইবার আমাদের কলকাতা ফেরার পালা। পরের দিন সকালবেলায় আমরা বেরিয়ে পড়ি কলকাতার উদ্দেশ্যে।